کہ جب کوئی حضور کی شان میں گستاخی کر دے اور وہ جیل بھی نہ جائے، وہ آزاد گھومے، اس وقت اپنا جذبہ دکھانا، تو میں کہوں گا کہ ہاں تمہارے اندر جرأت ہے، آپ کے جیسا کسی کا بابا ہو نہیں سکتا۔ اگر نانا کی بات کرے تو مالک کل آپ کے نانا ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں خاتم الانبیاء آپ کے نانا۔ اس چمنستان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وحدہ لا شریک لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ ولا اول لہ ولا آخر لہ ولا ظاہر لہ ولا باطن لہ ازلی عددی احدی صمدی فردی فرید ذیلی ثم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود و آب پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، وقت کافی ہو چکا ہے اور میری اتنی حیثیت و اوقات نہیں کہ میں کچھ بولوں یا کچھ آپ کو سناؤں۔ میں تو خود سننے کے نیت سے آیا ہوں اور دیدار کے لالچ میں آیا ہوں کہ دیدار بھی ہو اور کچھ سننے کو بھی ملے۔ میں تو خود لالچ میں آیا، بس یہ سمجھ لیجئے کہ میں اپنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں سبق سنا رہا ہوں، سبق سنانے کے لیے کھڑا ہوا، باقی میری کوئی حیثیت نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ اور کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ آج جمع ہوئے ہیں۔ میں مختصر وقت کے ساتھ میں چاہوں گا کہ جلد سے جلد میں اپنی جگہ لے لوں، یاد حسین منانے، اور یہ شہید اعظم کانفرنس ہے۔ ہم اور آپ جس ذات کا ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ ذات خود میں ہی بے مثال ہے، خود ہی میں بے مثال ہے۔ اور کسی کی شخصیت اگر آپ اس کے خاندان سے، رشتہ دار سے پتہ کرنا چاہیں گے، اب بھائی زمیندار کا بیٹا ہے تو اس کا رسوخ الگ ہوتا ہے، بزنس مین کا بیٹا ہے اس کا رسوخ الگ ہوتا ہے، تو آپ اس کے باپ سے پتہ کریں گے کہ بیٹے کا پاور کیا ہے۔ لیکن ہم ایسے بیٹے کی بات کر رہے ہیں جو خود میں بے مثال ہے، اور اگر ان کے بابا کی بات کریں تو ان کے بابا کے جیسا کائنات میں کسی کا بابا نہ ملے گا، ان کے بابا کے جیسا طاقتور، پاور والا، ہمت والا کسی کا بابا نہ ملے گا۔ کہ آپ دیکھیں گے میرے آقا حسین کے بابا مولا کائنات کے شیر خدا ہے، داماد پیغمبر ہے، آپ کے جیسا کسی کا بابا ہو نہیں سکتا۔ اگر نانا کی بات کرے تو مالک کل آپ کے نانا ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں خاتم الانبیاء آپ کے نانا ہے، سید المرسلین آپ کے نانا ہے۔
आपकी निस्बतें ऐसी है कि सैयदा ज़हरा आपकी अम्मी, भाई हसन, यानी पता चला कि निस्बतों में अगर आप देखेंगे आका हुसैन के जैसा कोई नहीं मिलता। इस ऐसी निस्बतें मेरे आका हुसैन से जुड़ी है। और एक बात मैं आपको बता दूं, 2-3 दिन पहले मेरे एक दोस्त थे, उनके वालिद साहब हज से आए, मुलाकात के लिए गया तो उन्होंने हमें कुछ खजूरें दी और पानी दिया, तस्बीह दी। मैं लेके घर जा रहा था, रास्ते में कुछ दोस्त यार मिले, हमने उनको वो खजूरें दी कि लो भाई मदीने शरीफ से आए हाजी साहब, उन्होंने दिया है, आप भी खाइए। और तो वो दोस्त जो थे मेरे, वो कोई हाफिज साहब, मौलवी साहब, मुफ्ती साहब नहीं थे, कॉमन मैन, दुकान वाला, सब्जी वाला, हमारे जैसे औकात में भाई कैसे दोस्त अफोर्ड कर सकते, टोटो वाला, ऐसे ही थे। लेकिन जिसने भी वो खजूर खाया, मैंने ये नोटिस किया कि खजूर खा रहे हैं और गुठली को संभाल के रख रहे हैं। अरे गुठली संभाल रहे, मैंने कहा मियां खजूर खा ली, गुठली क्यों संभाल रहे हो, गुठली क्यों संभाल रहे हो? कहा कि आका के शहर से निस्बत है, आका के शहर से निस्बत है, इसलिए गुठली संभाल ली। कोई टोपी संभाल लेता है, कोई रुमाल संभाल लेता है, क्यों संभाला? मेड इन चाइना है, रुमाल बना चाइना में, टोपी बनी चाइना में, लेकिन संभाल इंडिया में रहा है। कहा क्यों संभाला? तो इसलिए संभाल रहा हूं कि बना तो चाइना में है, लेकिन जो रास्ता इसने तय किया है वो आका के शहर का है, वो रास्ता आका के शहर से होके आता है। मुझे चाइना से गर्ज नहीं, मैं इसकी निस्बत को संभाल रहा हूं, मैं तो आका के शहर से होने वाले तबर्रुकात को संभाल रहा हूं। तो बताओ, जिस शहर में मेरे आका रहते हो, जो मेरे आका का शहर हो, उस शहर की मिट्टी, उस शहर की खजूरें और वहां की गुठलियां और वहां से आने वाली टोपियों का ये मकाम है कि खजूर खाने के बाद गुठली संभाल ली जाती है, टोपी संभाल ली जाती है। तो बताइए उस हुसैन का मकाम क्या होगा कि जिसके लिए नबी ने फरमाया लहमु का लहमी जिस्मु का जिस्मी। उस हुसैन का क्या मकाम होगा, उस हुसैन का क्या मकाम होगा जिसको आका ने कभी कंधों पे बिठाया है। उस हुसैन का क्या मकाम होगा जिनके जो है मुंह के अंदर आका अपना लुआब दहन डाल रहे हो। मेरे अजीज भाइयों, मैं बात लंबी नहीं करूंगा, मैं 2 नुक्ते बयान करके निकल जाऊंगा, क्योंकि बेहतर यह है कि अपनी जगह ले लेना। बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर, शाही भाई और दीगर पढ़े लिखे लोग हैं, हम जैसे जाहिलों का क्या काम। हमारे अल्लामा समीउल्लाह सकाफी साहब भी मौजूद हैं, तो बेहतर ये नहीं कि मैं ज्यादा वक्त लूं। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने इमाम हुसैन के बहुत सारे वाकया सुने होंगे कि कभी आका के कंधों पर है, कभी मिंबर पे है कि नहीं शाही भाई? कभी, ये सारे बचपन के वाकयात हैं, ये सारे बचपन के वाकयात हैं। इसके बाद आपको डायरेक्ट सुनने को मिलेगा आका हुसैन करबला में है। ये जो बीच की जिंदगी है मेरे आका हुसैन की, उसको कहां छुपा लिया, उसको कहां छुपा लिया? अभी आप छोटे हैं, आका के गोद में हैं, अचानक से करबला पहुंच गए क्या? ये बीच की जिंदगी कहां गई? तो पता चलेगा कि मेरे आका हुसैन की ये बीच की कीमती जिंदगी कुछ जालिमों ने छुपा दी है, छुपा दी है, छुपाने की कोशिश की है। इसलिए क्योंकि अगर आप बीच की जिंदगी उठाएंगे, तलाशेंगे, तो मिलेगा कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पे हमारी जाने कुर्बान, इस दुनिया से रुखसत फरमाने के बाद आप देखेंगे कि कभी आका हुसैन जो है अबू बकर की गोद में है, कभी उमर की गोद में है। आप पढ़ेंगे और सहाबा के साथ अहले बैत की मोहब्बत को जो छुपाने वाले जालिम हैं, ये समझते कि हैं हम बड़े चालाक हैं, हम बड़े सियाने हैं। लेकिन याद रखो, लोगों ने पढ़ा है और हम जब तक जिंदा है, हमारे जिस्मों में जान है, हम सहाबा का भी एहतराम करेंगे, हम अहले बैत का भी एहतराम करेंगे। मेरे अजीज भाइयों, यही हजरत उमर है। आप अंदर मशवरा फरमा रहे हैं, तवज्जो चाहूंगा, आप अंदर मशवरा फरमा रहे हैं और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बाहर बैठे हैं। आका हुसैन आए, क्या अब्दुल्ला बिन उमर से कहा आप बाहर बैठे हैं, कोई बात? कहा कि अंदर मशवरा चल रहा है। मैं अपने अंदाज में बता रहा हूं कि अंदर मशवरा चल रहा है, अंदर जाने की इजाजत नहीं है।
आका हुसैन भी बैठ गए। जब मशवरा मीटिंग खत्म हुई, हजरत उमर बाहर आए, देखा आका हुसैन बैठे हैं। कहा हुसैन कब आए? कहा मैं तो काफी टाइम पहले आया था, काफी वक्त हो गया आके। बाहर क्यों रुके? इसलिए। कहा कि इसलिए रुका हूं कि आपके बेटे को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, तो मैं तो अली का बेटा हूं, मैं तो अली का बेटा हूं। हजरत उमर फरमाते हैं कि हुसैन वो मेरा बेटा हो सकता है, लेकिन और आप जो है अली के बेटे हो सकते हैं, लेकिन उमर के अंदर वो जुर्रत नहीं कि आपको इजाजत दे अंदर आने की। ये घर भी आपका, ये जिस्म भी आपका, ये जान भी आपका, आपको इजाजत लेने की जरूरत नहीं, जब चाहे अंदर तशरीफ ला सकते। ये मोहब्बतें छुपाई गई। मैं बात को तवील नहीं करूंगा मेरे अजीज भाइयों, ये आखिरी नुक्ता मैं बताकर जाऊंगा, क्योंकि मैं तो घर की मुर्गी दाल बराबर, खाओ तो भी ठीक, फेंक दो तो भी ठीक। लेकिन यहां सबसे बड़ा इम्तिहान हमारा ये है कि आज जो हम इमाम हुसैन के नाम पर जमा हुए हैं, तो कल को ऐसा ना हो कि इमाम हुसैन के तरीके से हम हट जावे, कि इमाम हुसैन ने कबीला, कुनबा, खानदान सब कुछ लुटा दिया, लेकिन बातिल के आगे सरे तस्लीम खम नहीं किया। तो मुझे उन नौजवानों से पूछना है कि मुझे बताओ, तुम उस वक्त क्या सोए रहोगे जब कोई तुम्हारे नबी के नाम की गुस्ताखी कर कर सोशल मीडिया पे भौंकता फिरेगा, और तुम घर में बैठकर उनके कमेंट्स पढ़ते रहोगे और फिर कहोगे कि हमारी जुर्रतें इतनी है, हमारे पास इतने पावर है, हम बेनेटी ऐसे घुमाते हैं, हम तो ऐसे करके निकलते हैं, और हम जो है 7 तारीख को ऐसे जाते हैं, और हम 8 तारीख को इस रूट से जाते हैं, और 9 तारीख को और 10 मुहर्रम को ऐसे मनाते हैं। तो मैं उनसे कहूंगा कि अपना जज्बा, अपना जोश मुहर्रम में बेनेटी घुमाने में मत दिखाना। अगर अपना जोश दिखाना है तो उस वक्त दिखाना कि जब कोई हुजूर की शान में गुस्ताखी कर दे और वो जेल भी ना जाए, वो आजाद घूमे, उस वक्त अपना जज्बा दिखाना। तो मैं कहूंगा कि हाँ, तुम्हारे अंदर जुर्रत है, क्योंकि दिन ब दिन ये मामला बढ़ते जा रहे हैं। कल या परसों फिर किसी एक शैतान सिफत औरत, उसने मेरे नबी के शान में गुस्ताखी की। मैं कहता हूं कि अगर हम उसको जेल न भेज सके तो मेरा जिंदा रहना भी बेकार, और जो है झूठ मुठ का लंबे लंबे नारे लगवाना, और इस्लामपुर वालों में ये जुर्रत है, और इस्लामपुर में इतने नेता है, और इस्लामपुर में इतने लीडर है, ये सब बेकार है। अगर आका हुसैन से मोहब्बत है तो आका हुसैन के नाना से मोहब्बत होनी चाहिए, और मोहब्बत की दलील यह है कि जो आका से मोहब्बत करेगा, आका के दुश्मनों से नफरत करेगा और उनके खिलाफ निकलने से डरेगा नहीं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जहां रहे, जिस हाल में रहे, कसम खुदा की हुजूर की वफादारी को साबित करने में तुले रहे, क्योंकि दुनिया की किसी की वफादारी कल क़यामत में काम नहीं आने वाली। अगर काम आएगी तो सिर्फ हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की वफादारी काम आएगी और आका हसनैन की मोहब्बत काम आएगी। तो मेरी बात में यहीं पे समेटने की कोशिश करता हूँ। मैं तो खुद बौखलाया हुआ हूँ कि जब हुजूर ही सामने मौजूद है तो मैं क्या बोलूं और क्या सुनाऊं। मैं तो खुद अभी दीदार जी भर के कर भी नहीं पाया, अब बैठ के दीदार करने का मौका मिलेगा। अल्लाह पाक हमारे इस जलसे को कामयाब फरमाए, कबूल फरमाए, और जो नौजवानों ने मेहनत की है इसको कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।